इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 1 साल तक वेकेंट था. If a constitutional body is not guaranteed the safety and protection by the court of law, then who will? Change in the structure is very important. People might say that I don't have so much experience, but I have experience of working in National Commission, and I hope I use that experience here. After a gap of almost a year, the Arunachal Pradesh Public Service Commission finally got a new body. Governor K.T. Parnaik on December 13 administered the oath of office and secrecy to 2 newly appointed members of the APSC, retired Colonel Coach Tari and Rosie Taba at the Darbar Hall of Raj Bhavan. Newsfire executive editor Irani Sonwal Lepcha caught up with Rosie Taba on her first day at work, where the newly appointed APPSC member speaks on her legal battle over the past year, her vision for the APPSC and many more. Yeah, I feel very grateful. I think all the credit goes to my advocate D.K. Panging sir for winning the case and bringing me here. I feel very delighted, but at the same time it feels really responsible coming and sitting in this chair, and I hope I do great work here. Actually, what has happened is because of the fiasco followed by the demands by some organization and other thing, the whole office was shut down almost for a year. So there has been some issues with the staff also. But now I got to know from the other secretary that they have written to the government to give more staffs. There will be allocated in, I think within a week it will be, मतलब ठीक ठाक हो जाएगा ऑफिस में सब कुछ, and staff लोग भी आने लगेगा. I think change in the structure is very important. क्यों आज तक होते जा रहा है ना, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हुआ है, फियास्को कुछ गलती हो रहा है. But I think robust structure should be formed APCS का. Previously भी देखा है, अभी भी हम जैसे अभी आके देखता है very understaffed. पहले तो ये जो basic institution है APCS का, इसको strong करना है. Staff का कमी नहीं होना है. There should not be understaffed. और हर चीज़ का proper जैसे SOP बोले standard operating procedure कैसे होना है, उसको तो robust करना बहुत ज़रूरी है. Plus staff adequate होना बहुत ज़रूरी है. Once APCS is established with enough strength, infrastructure and all the facilities, तब हमको लगता है कि we will be successful in creating a new environment and giving a more confidence to the youth that we are going to conduct the examination very transparent and very properly. You know that we come from legal background. हम लोग जब appointment ही हुआ तभी थोड़ा तो न्यूज़ मिलता है ना, दिस पीपल द प्रेशर ग्रुप वाज ऑन टू दैट कि ये अपॉइंटमेंट नहीं होना है. चेयरपर्सन को लेके कब हम लोग पे बात आ गया हम लोग को मालूम ही नहीं चला. एंड एट दैट नाइट ऑफ आई थिंक 16-17 आ गया when there was a mob crazy and so many people came on the road and our oath taking was recalled. And by the time when the recall order came, उसमें लिखा था क्योंकि हम लोग oath taking नहीं किया है इसीलिए हुआ है. But then when you go to the constitution, हम हमेशा बोलता है constitution is very vast. Even as an lawyer, law student, हम लोग को बहुत समय लग जाता है एक proper part को पढ़ने में या constitution का provision को पढ़ने में, उसको interpret करने में. Very easy कि एक बेयर एक्ट उठाया उसको पढ़ा, ऐसा नहीं होता है. Law is always open to interpretation. और उसमें clearly लिखा है ना कि appointment क्या है, swearing in क्या है, उसके बाद office resume करना क्या है. So we thought एज एन पर्सनली मैं और मेरे हस्बैंड ने सोचा, बिकॉज वी कम फ्रॉम द लॉ बैकग्राउंड, कुछ भी कोई भी कर देगा उसको हम लोग लेके चलेगा, अच्छा नहीं है. वंस फॉर ऑल थिंग्स शुड बी क्लियर. दैट्स व्हाई वी वेंट टू द कोर्ट एंड वी वांटेड टू मेक श्योर कि आगे भी ऐसा नहीं होना है. वी शुड मेक ए गुड प्रेसिडेंट कि नोबडी इज अबव लॉ. जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अपॉइंट करता है विद प्रॉपर प्रोसीजर्स, यू कैन सी हाउ द प्रोसीजर्स वर डन. सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन था, हाउ वी वर सिलेक्टेड, हाउ आवर बायोडाटा वाज चेक्ड, हाउ आवर पुलिस वेरिफिकेशन इज डन. सब कुछ प्रॉपर प्रोसीजर था. इफ देयर वाज अ प्रोसीजरल लैप्स तब हम लोग को निकाल सकता था, उसमें इशू नहीं था कि इलीगलिटी से अपॉइंटमेंट हुआ है. बट इट वाज वेरी क्लीन एंड डन वेरी प्रॉपरली. तो उसके बाद जब हम लोग कोर्ट गया, देयर वाज एन इशू कि हम लोग अपॉइंटमेंट एब्सोल्यूट है कि नहीं है. वंस 316 क्लॉज 1 में अपॉइंटमेंट हो गया वो एब्सोल्यूट है. बट ओथ टेकिंग इज ए सेरेमोनियल, वो जो हम लोग बोल रहे हैं सेरेमोनियल फंक्शन करना ज़रूरी है. बट देन देयर इज़ अ रेगुलेशन. अरुणाचल प्रदेश में एक रेगुलेशन है कि ओथ टेकिंग का बाद ही ऑफिस रिज्यूम कर सकता है. एंड दैट्स वाई
इस बार का जो वर्डिक्ट आया उसमें क्लियरली लिखा है कि इनका अपॉइंटमेंट एब्सोल्यूट है, इनको और टेकिंग कराइए और ऑफिस में जाने दीजिए। एक बार आप ऑफिस रिज्यूम कर लिया, लाइक वी आर फंक्शनिंग फ्रॉम टुडे, तो उसके बाद 317 लागू होगा कि इसको टर्मिनेट या सस्पेंशन कौन कौन से ग्राउंड में होगा, जो आप लोग देखा होगा, मिस अप्रोप्रिएशन जो भी है 317 तभी होगा। अदरवाइज इतना कन्फ्यूजन क्रिएट किया ना इसमें, ये सब कैओस में इतना कन्फ्यूजन, लीगलिटी का कन्फ्यूजन हो जाता है, दैट मी एंड माई हस्बैंड वांटेड टू मेक वेरी क्लियर, एंड आवर एडवोकेट डी के पंगिन सर, बीइंग एन एक्सपर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ही मेड इट वेरी क्लियर, इवन द जज वाज वेरी क्लियर कि जो चीज़, कुछ भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं हो सकता है। If a constitutional body is not guaranteed the safety and protection by the court of law, then who will? Yeah, it's not two people missing. Appointment तो हो गया ना, appointment का ऑर्डर निकल गया। स्वेरिंग इन क्या है कि कोर्ट का ऑर्डर है कि हम लोग को स्वेरिंग इन कराना है इमीडिएट। तो अगर कोर्ट का ऑर्डर में इमीडिएट लिखा है, व्हाट इज इमीडिएट अगेन? नाउ अभी इस देखो, अरुणाचल का अभी माइंडसेट ऐसा है कि हर चीज़ में क्वेश्चन पूछता है। देयर इज अ कोर्ट वर्डिक्ट, उसमें लिखा है इमीडिएट इनको स्वेरिंग इन कराइए आपका रेगुलेशन में और ऑफिस में बैठाइए, उसके बाद आपको इनको निकालना है तो 317 में निकाल सकता है, उसमें पूरा लिखा है। नाउ लिंगफा सर और जो आसान रेड्डी सर है वो पहले से प्रोफेसर है, आई एम सेइंग यस्टरडे आल्सो सर, वो तो सर्विस में थे ना, और इन सर्विस में रह के भी आप अप्लाई कर सकता है पोस्ट के लिए विद ए फॉरवर्डिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट दैट आई हैव मेड इट क्लियर। तो अभी इनको सर्विस से उनको उधर से निकलने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, देयर इन सेंट्रल जॉब, थोड़ा प्रोसीजर होता है, उसमें तो वेट कर सकता है। एंड ओथ टेकिंग, बिकॉज यू कैन नॉट कीप ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वैकेंट। अभी ये हम बोल रहा है, इट्स इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 1 साल तक वैकेंट था। नाउ एटलीस्ट 2 members are there. At least we can say it can function, right? It's not vacant, it's working, we can say that. And I think that's why I think the government had taken step and we fully support it. I would like to, perhaps request you all to keep your hopes high and study hard. And I would say that have faith in us, in this new commission that has been formed, and we will try to work very hard and honestly for you all, so that in future you people have that faith again in us. Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.